Hello engineers, good morning. Today we are in exercise 11.2. 9 sums are already completed. 10th and 11th sum is omitted. So we will start today from question number 12. टेक्स्ट बुक लेके बैठना है, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, देन वी विल डू. सारे क्वेश्चंस आज के बहुत इजी है, देखते जाओ, करते जाओ. सी फर्स्ट क्वेश्चन मींस 12th. Find the value of P if two given lines are perpendicular to each other. Lines are given in the form of Cartesian. वो भी प्योर कार्टेशियन नहीं है, हमें थोड़ा मसाला डालना पड़ेगा. बिकॉज टू कंपेयर इट विथ कार्टेशियन इक्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड शुड बी 1 और बीच में साइन माइनस होनी चाहिए. नहीं है तो हम बनाएंगे. तो सबसे पहले वी विल सिंप्लीफाई दिस. थोड़ा हल्का सा मसाला डालना पड़ेगा. आफ्टर दैट इट विल बी लिटिल टेस्टी. सो लेट अस स्टार्ट. चलो, फॉर L1 the given form is 1 minus x upon 3 equal to 7y minus 14 upon 2p equal to z minus 3 upon 2. अब मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूं. द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड शुड बी 1. मैं वो बना रहा हूं. देखो यहां पे x का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1. सो इट विल बी x minus 1 upon -3. यहां पे 1 बनाने के लिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7. then it will be y minus 2 upon 2p by 7 equal to, it is ready-made form, इसे कुछ नहीं कर रहा है. तो देखो यहां से हमें लाइन मिल गई which passes through which point 1 2 3 a bar is equal to 1 2 3 and having direction. अच्छा मैं a1 बार कहूंगा बिकॉज वी हैव टू लाइंस एंड हैविंग डायरेक्शन b1 बार इक्वल टू -3 2p by 7 and 2. This is for first line. Now for second line means for L2. The given form is 7 minus 7x upon 3p 7 minus 7x upon 3p equal to y minus 5 upon 1 for L2 y minus 5 upon 1 equal to 6 minus z upon 5. चलो इससे भी कंपेयर करने के लिए विद द कार्टेशियन इक्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ x y एंड z शुड बी 1. देखो यहां पे 1 बनाने के लिए वी विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -7. सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -7. सो इट विल बी x minus 1 upon -3p upon 7. It is ready-made form. So no need to add any kind of masala. यहाँ पे the coefficient of z is -1. So इसे +1 बनाने के लिए ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करो. So it will be z minus 6 upon -5 which passes through
which point A2 bar? A2 bar is equal to 156 and having direction B2 bar equal to minus 3p by 7, minus 3p by 7, 1 and minus 5. Now see, it is given that both the lines are perpendicular to each other. If lines are perpendicular to each other, then the vectors which are in the direction of lines will be perpendicular. See, B1 bar is in the direction of L1 and B2 bar is in the direction of L2. Whenever the lines are perpendicular, vectors will be perpendicular. If vectors are perpendicular, their dot product will be 0. It is necessary condition. So here L1, here L1 is perpendicular to L2. That implies B1 bar dot B2 bar will be 0. Whenever the vectors are perpendicular, the dot product will be 0. So what is B1 bar? This is B1 bar. Minus 3 to P by 7 to P by 7 to dot minus 3p by 7 1 minus 5 equal to 0. That implies minus 3 to minus 3p by 7 will be 9p by 7. 2 into 1 means plus 2p by 7. 2 into minus 5 will be, for this 2 7 will be LCM. 10 को मैं ले जा रहा हूँ राइट हैंड साइड में, so that implies 9 plus 2 11p by 7 because both have same denominator equal to 10. That implies 11p. That implies 11p is 70 and that implies p is 70 by 11 which is required value of p. देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपने पढ़ा होगा, उसमें पूछा है या फिर बोला है कि सो दैट द लाइन्स आर परपेंडिकुलर. इसके जैसा ही सम है. B1 बार B2 बार आप ला दो, वेरी इजीली वो आ जाएगा बिकॉज वेरी इजी फॉर्म गिवन. B1 बार और B2 बार जैसे ही मिले आपको B1 बार डॉट B2 बार इक्वल टू 0 शो कर दो. अगर B1 बार डॉट B2 बार इक्वल टू 0 हो गया तो वी कैन से द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो वहां पे आपको वो शो करना है, इसलिए वो सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं. याद रखना, यहां पे परपेंडिकुलर थी तो हमने B1 बार डॉट B2 बार इक्वल टू 0 ले लिया. वहां पे हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है, सो वी विल शो B1 बार डॉट B2 बार इज इक्वल टू 0. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो वन ऑफ द बढ़िया सम्स. 14, 15, 16, 17 सारे सेम सम्स है. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, बिटवीन द लाइंस. देखो अगर लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आप उसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हो. इफ लाइंस आर नॉन कोप्लेनर तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑल्सो नोन एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो सबसे पहले आपको माइंड में ये करना पड़ेगा कि भाई लाइंस कैसी है, पर पैरेलल है या नॉन कोप्लेनर है. अगर नॉन कोप्लेनर है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे. फॉर्मूला भी आपको याद रखनी है कि P इज नोटेशन फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. देन द फॉर्मूला इज E1 बार
माइनस A2 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार अपॉन मोड B1 बार क्रॉस B2 बार, where A1 bar is point of first line, A2 bar is point of second line, B1 bar is direction of first line, B2 bar is direction of second line. ये सब चीजें हमें यहां से डिटरमाइन करनी है. गेटिंग माई पॉइंट? सो लेट अस स्टार्ट. चलो, L1 is, देखो इट इज वेक्टर फॉर्म गिवन 1 2 1 1 minus 1 1 2 minus 1 minus 1 2 1 2 रेडीमेड सब कुछ दिया हुआ है. सो L1 इज पासिंग थ्रू E1 bar is, this is the point 1 to 1 1 to 1 and having direction B1 bar is, चलो its direction is 1 minus 1 1 1 minus 1 1. L2 is passing through, L2 is passing through, point is given 2 minus 1 1, sorry 2 minus 1 minus 1. A2 bar is equal to 2 minus 1 minus 1 and having direction B2 bar is equal to, it is given 2 1 2. तो देखो A1 बार A2 बार B1 बार B2 बार एवरीथिंग वे हो. नाउ ये सारी फॉर्म हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड B1 बार क्रॉस B2 बार. नाउ B1 बार, अगर B1 बार क्रॉस B2 बार 0 बार मिला, 0 वेक्टर मिला, तो बोथ द लाइंस विल बी पैरेलल और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला लगाएंगे. इफ इट इज नॉन जीरो द लाइंस विल बी नॉन कोप्लेनर, तो हम ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे. क्लियर पॉइंट? चलो फर्स्ट वी विल फाइंड B1 बार क्रॉस B2 बार. क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमारे पास है I कैरेट J कैरेट K कैरेट. B1 बार इज 1 minus 1 1 1 minus 1 1. B2 bar is 2 1 2 2 1 2 2 1 2. Okay, now simplify this. Equal to I caret into minus 2 minus 1 minus 3 minus J caret will be 2 minus 2 0 plus K caret is 1 plus 2 3. So equal to minus 3I caret plus 0J caret plus 3K caret. So B1 bar cross B2 bar will be minus 3 0 3. Done. It is non-zero, means non-zero vector. 0 बार नहीं है तो lines are not parallel, क्योंकि B1 बार और B2 बार सेम या ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर नहीं है. ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताई हुई है. नाउ वी विल फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार. सो मोड B1 बार क्रॉस B2 बार इज अंडर रूट 9 प्लस 0 प्लस 9. ये भी आपको पता है. सो रूट 18 इट विल बी 3 रूट 2. अब मुझे न्यूमरेटर वाला फॉर्म चाहिए. A1 बार माइनस A2 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार.
अब a1 बार माइनस a2 बार में डायरेक्ट ओरली यहाँ पे डिफाइन करूंगा। सी a1 बार माइनस a2 बार 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 2 माइनस माइनस 1 इज 3, 1 माइनस माइनस 1 इज 2। समझे कि नहीं? सी 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 2 प्लस 1 इज 3, 1 प्लस 1 is 2. Dot b1 bar cross b2 bar is minus 3, 0, 3 equal to minus 1 into minus 3 plus 3. 3 zeros are 0, 2 3s are 6, कुल मिला के 9. So the least distance or shortest distance, therefore shortest distance between L1 and L2 is, P is only the notation, mod A1 bar minus A2 bar dot B1 bar cross B2 bar upon mod B1 bar cross B2 bar. अच्छा, अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पे आपको a2 बार माइनस a1 बार दिया हुआ है, बट वेनेवर वी हैव मॉड्यूलस कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखो a1 बार माइनस a2 बार या लिखो a2 बार माइनस a1 बार, सारी वैल्यूज हमारे पास है। मॉड्यूलस में दिस इज 9 अपॉन मोड v1 बार क्रॉस v2 बार इज 3√2 इक्वल टू 9 अपॉन 3√2 is 3 upon root 2. This is the least distance between two non-coplanar lines. बराबर याद रखना, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, it is chances to ask in the exam. बराबर याद रखना. So please write down this. Question number 15. Same question, find the shortest distance between two given lines. अब लाइन का जो फॉर्म है ना, दैट इज डिफरेंट। इन 14th सम देयर वाज वेक्टर फॉर्म, इन 15th सम बोथ द लाइंस हैव कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में देखो XYZ के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए एंड द साइन बिटवीन देम शुड बी द माइनस। तो एवरीथिंग इज रेडीमेड, नो नीड ऑफ एनी मसाला। हम सिर्फ और सिर्फ a1 बार a2 बार b1 बार b2 बार डिफाइन करेंगे और कुछ हमें नहीं करना है, बिकॉज सब कुछ रेडीमेड दिया हुआ है। तो देखो हियर L1 is passing through, L1 is passing through -1 -1 -1. A1 bar is equal to -1 -1 -1 and having direction B1 bar is equal to 7 minus 6 1, 7 minus 6 1. This is for first line. For the second line, and L2 is passing through, L2 is passing through, A2 bar is equal to, that is 3 5 7, 3 5 7 and having direction B2 bar is equal to 1 minus 2 1. सब कुछ रेडीमेड दिया हुआ है, हमें कुछ भी नहीं करना है। सो A1 बार A2 बार B1 बार B2 बार सब कुछ आ गया। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला तो हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड
b1 bar cross b2 bar. Now b1 bar cross b2 bar is indeterminate I caret, j caret, k caret. Then b1 bar 7 minus 6 1, 7 minus 6 1, b2 bar is 1 minus 2 1 equal to I caret into minus 6 plus 2 will be minus 4 minus j caret. 7 minus 1 is 6 plus k caret minus 14 plus 6 is minus 8. So equal to minus 4i minus 6j minus 8k is minus 4 minus 6 minus 8, which is not equal to 0 bar. So b1 bar or b2 bar are not parallel, means not in the same direction or not in the opposite direction, so they will be non coplanar. अब सब कुछ लाना ही है फॉर्मूला में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड मोड b1 बार क्रॉस b2 बार इक्वल टू, चलो मोड इज अंडर रूट minus 4 square is 16, minus 6 square is 36, minus 8 square is 64, so equal to under root 6 plus 6 12 plus 4 16, 1 plus 1 2 plus 3 5 plus 6 11, 16 है तो 2 कॉमन निकलेगा, 2 into under root 4 2 जा 8, 3 बचे, 9 4 जा 36, so 29, so 2 root 29. This is mod b1 bar cross b2 bar. अब हम डिटरमाइन करेंगे e1 बार माइनस a2 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार. e1 बार माइनस a2 बार we will find orally. चलो e1 बार माइनस a2 बार minus 1 minus 3 minus 4 minus 1 minus 5 minus 6 minus 1 minus 7 minus 8 dot b1 bar cross b2 bar we have minus 4 minus 6 minus 8. देखो दोनों के सेम एलिमेंट आ गए, कोई इंसिडेंटली ये हुआ है, एक्चुअली कोई ऐसा प्लानिंग से बनाया हुआ नहीं है और ऐसा बन भी नहीं सकता है. इक्वल टू माइनस 4 4 जा 16 प्लस 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64, सो इट विल बी 116. सब कुछ हमें मिल गया. नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नाउ between L1 and L2 is by the formula mod E1 bar minus A2 bar dot B1 bar cross B2 bar upon mod B1 bar क्रॉस b2 बार. सब कुछ हमारे पास है. चलो ठीक है, इक्वल टू e1 बार माइनस e2 बार, इसकी वैल्यू है 116 अपॉन मोड b1 बार क्रॉस b2 बार, दैट इज 2 रूट 29, सो इक्वल टू 116 अपॉन 2 इंटू रूट 29, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, so 58 upon root 29, 29 2 जा 58, so डायरेक्ट हमारा काम होगा, 2 बाहर निकल गया, 29 29 में से एक रूट 29 कट गया, so 2 root 29 will be the answer. This is shortest distance between two given lines. See 16th sum,
इज एग्जैक्टली लाइक 14th, इसीलिए मैं आपको 16th होमवर्क में दे रहा हूं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 में भी वही क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिफरेंस इज ओनली दैट 14th में था हमारे पास वेक्टर फॉर्म, 15th में था हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म, वेयर एज इन द 17th वी हैव वेक्टर पैरामीटर फॉर्म, वेक्टर पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीटर भी है और वेक्टर फॉर्म भी है। तो मुझे यहां से a1 बार, a2 बार, b1 बार, b2 बार सिर्फ डिटरमाइन करना है, बराबर याद रखना। तो चलो फॉर L1 वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस, r बार इज इक्वल टू, अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, राइट। L1 r बार इज, आपको r बार भी लिखना है यहाँ पे, L1 फर्स्ट लाइन r बार इज इक्वल टू L2 r बार इज इक्वल टू, राइट। सो r बार इज इक्वल टू, expand this, 1 into I caret means I caret minus t I caret plus tj caret minus 2j caret plus 3k caret minus 2k caret t minus 2tk caret। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा विदाउट टी एंड विथ टी, तो अपने आप हमारा काम हो जाएगा विदाउट टी मीन्स आई कैरेट, देन माइनस 2j कैरेट, देन 3k कैरेट। अब t वाले टर्म्स में से मैंने t कॉमन लिया, सो बचेगा माइनस आई कैरेट प्लस j कैरेट माइनस 2k कैरेट। मैं इसे एलिमेंट फॉर्म में भी लिख सकता हूं, 1 माइनस 2 3 प्लस टी इंटू माइनस 1 1 माइनस 2। देखो कितना इजी हो गया, मैंने इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। विच पासिस थ्रू a1 bar is 1 minus 2 3 1 minus 2 3 and having direction b1 bar is equal to minus 1 1 minus 2। ये फर्स्ट लाइन के लिए डिस्कशन हो गया। फॉर द सेकेंड लाइन मीन्स L2, चलो r बार इज इक्वल टू, मैं दिए हुए फॉर्म को सिंप्लीफाई करूंगा, एस आई कैरेट प्लस 1 इंटू आई कैरेट मीन्स आई कैरेट प्लस 2s j कैरेट प्लस 2s j कैरेट माइनस j कैरेट माइनस 2s k कैरेट माइनस माइनस प्लस k कैरेट। अब देखो यहां पे जैसे पैरामीटर t था, ऐसे यहां पे हमें पैरामीटर s दिया हुआ है, तो विदाउट s एंड विथ s अवर स्टोरी विल बी ओवर। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट s, तो i कैरेट देन माइनस j कैरेट देन प्लस k कैरेट, और विथ s में से मैंने s कॉमन लिया, then it will be I caret plus 2j caret and then minus 2k caret। मैं इसे एलिमेंट फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं, 1 minus 1 1 plus s into 1 2 minus 2 which passes through a2 bar is equal to 1 minus 1 1 1 minus 1 1 and having direction
b2 bar is equal to 1 to minus 2, 1 to minus 2। अब देखो आपके पास a1 बार, a2 बार, b1 बार, b2 बार, सब कुछ आ गया। मीन्स यू कैन फाइंड एवरीथिंग फॉर द फॉर्मूला। फॉर्मूला में जितनी भी टर्म्स चाहिए, तो इसके बाद आप यहां से सम कर सकते हो। ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। तो 16 पूरा मैंने होमवर्क में दिया, 17th में मैंने आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिया, थोड़ा मसाला डाल के दिया। अब आपको सॉल्व करना है, उसे टेस्टी बनाना है। तो आज हमारा ये 11.2 एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होने जा रहा है। So in the next lecture we will start new topic, that is plane, because in 11th chapter we have two topics. First is line in space and second one is plane. So in the next lecture we will start the topic plane. तब तक के लिए see you, bye bye, टाटा।